Assalamu alaikum students. This is your fourth chapter and last chapter in political science of 8th standard by the name local government. Okay, this is the chapter which is quite important for you all to learn, to study, to understand. Okay, in the social studies, in the political science part of social studies, it is the fourth chapter by the name local government. In this chapter, we will be learning about the importance of local government, the formation of local government, and the objectives and the features and responsibilities and also the functions of local government and how it is administrated, how it is running. These all concepts will be covering in this chapter. Students, the concept of local government is not so early. Okay, it is not so new concept. It is very old concept, very ancient concept. Before the democracy of our country, okay, before the democracy of our country, before the independence of our country, there was British rule for overall 200 years. Before the British rule, there was various dynasties and kingdoms ruling in India. The history of India, okay, the history of the rulers, the history of the kings and the queens in India is not so early. It is very ancient, before 2000 to 3000 years back. From that time, India is under rule of the kingdoms, okay, and all the queens and all the kings and all the rulers used to implement the concept of local government, okay, because the kingdom was very big. Okay, the land on which the rulers used to rule was very big. So for handling and for maintaining and managing whole kingdom by a single queen, by a single king, it was very difficult and it was highly nearly to impossible. So for this reason, what the rulers used to do, they used to divide the kingdom in small pieces, okay, in small sections, in small provinces, in small territories, in small sections. Every section used to have their own leader, their own governor, uh, their own authoritator, okay. These small sections, in these small sections there was leader, okay. This leader used to run a small government, and in its particular area, that small government is called as local government, okay. It is very old concept, okay. Many kingdoms in India gave importance, many kingdoms in India followed this idea, okay. And the first and foremost time, the concept of local government was started by Lord Ripon in 1882, okay. This was a concept which was not new. This is the concept which is implemented, applicated, and used from far, very far in past, from 1000 to 2000 years back. But it was started learning. It became the concept of learning. It became the concept of emphasizement by Lord Ripon, okay, in 1882, ओके। तो बच्चों, ये आपका सोशल स्टडीज में पॉलिटिकल साइंस का फोर्थ चैप्टर है, लोकल गवर्नमेंट इसका नाम है। तो ये जो लोकल गवर्नमेंट का जो कॉन्सेप्ट है बच्चों, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये इंडिया में बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है, ओके। इंडिया में तकरीबन 2000 से 2500 साल पहले से बादशाहों का राज, बादशाहों की हुकूमत चलती आई है। अब तक बहुत सारे बादशाहों ने हुकूमत की। मुग़ल ख़ानदान के बादशाहों ने, विजयनगरा ख़ानदान के बादशाहों ने, और आदिल शाही ख़ानदान के बादशाहों ने, और मौर्य डायनेस्टी तो बहुत पुरानी हुकूमत थी। गुप्ता भी बहुत पुरानी हुकूमत है। ये मौर्य और गुप्ता तो मुग़ल से पहले के हुक्मरान हैं। तो हर हुक्मरान जो है, क्योंकि हुकूमत बहुत बड़ी थी, इंडिया छोटा मोटा कंट्री तो है नहीं,
इंडिया की ज़मीन बहुत बड़ी है। अब इतनी बड़ी ज़मीन पर एक अकेला बादशाह की हुकूमत करना मुश्किल है। तो हर एक बादशाह क्या करते थे, अपनी हुकूमत को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करते थे, ठीक है। और हर एक हिस्से का, हर एक पार्ट को, हर एक सेक्शन का एक लीडर अपॉइंट करते, एक सरपंच अपॉइंट करते, एक सरदार अपॉइंट करते थे, ठीक है। अब जिस आदमी को, जिस देहात, जिस गांव का, जिस करिए का सरदार अपॉइंट किया जाता, उस करिए में, उस गांव में, उस देहात में उस आदमी की हुकूमत होती। अदर दूसरे अल्फाज में उस आदमी की गवर्नमेंट होती। तो इस तरह के छोटे छोटे गवर्नमेंट्स को लोकल गवर्नमेंट कहते हैं। क्योंकि ये बहुत ज़रूरी कॉन्सेप्ट है, क्योंकि एक आदमी पूरे इंडिया पर एक वक्त में पूरे इंडिया को तो नहीं संभाल सकता। हर वक्त इंडिया को गवर्नमेंट की ज़रूरत है, इंडिया में हर वक्त हाकिम की ज़रूरत है, मैनेजिंग लीडर्स की ज़रूरत है। तो एक लीडर या दो लीडर मिलकर पूरे इंडिया को तो नहीं संभाल सकते। इसीलिए हर एक बादशाह क्या करते थे, सूबा बनाते, करिया बनाते, ठीक है, और डिविजन्स बनाया करते थे। ये हर डिवीजन को एक लोकल गवर्नमेंट कहा जाता है। और इस लोकल गवर्नमेंट के ऊपर रिसर्च, इसके ऊपर तहकीक, इसके ऊपर पढ़ना पढ़ाने का जो सिलसिला शुरू हुआ, सबसे पहले 1882 में शुरू हुआ। उसका शुरुआत करने वाले हैं लॉर्ड रिपन, ओके। लॉर्ड रिपन इसकी शुरुआत की। ये लोकल गवर्नमेंट जो है दरअसल एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें एक आम आदमी का ताल्लुक बादशाह से कराया जाता है। एक आम आदमी के बीच में और एक बादशाह के बीच में एक ब्रिज का काम करता है, एक रास्ते का काम करता है, एक जरिए का काम करता है, ठीक है। हर एक आम आदमी को हक है कि वो अपना मसला बादशाह के सामने रखे, अपना प्रॉब्लम बादशाह को सुनाए। लेकिन बादशाह का जो महल है बहुत दूर होता है, हजारों किलोमीटर दूर होता है। अब एक आम आदमी का वहां पहुंचना मुश्किल है। तो एक आम आदमी क्या करे, वो आदमी जो शहर में रहता है, उस शहर के सरपंच को अपनी बात सुनाए। वो सरपंच क्या करेगा, वो सरपंच जिस डिस्ट्रिक्ट का सरपंच है और वो डिस्ट्रिक्ट जिस इलाके में आती है, उस इलाके के सरपंच तक अपनी बात, इस आम आदमी की बात पहुंचाता है। वो इलाके का जो सरपंच है सीधे जाके बादशाह के पास इस आम आदमी की बात पहुंचाता है। तो बहुत सारे वास्तव से, बहुत सारे तरीके से, बहुत सारे वसीले से एक आम आदमी एक बादशाह से बात कर सकता है, अपना मसला शेयर कर सकता है, अपना प्रॉब्लम सुना सकता है और उसके सल्यूशन के लिए आवाज़ उठा सकता है, ठीक है। लोकल गवर्नमेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और पहले ऐसा होता था कि हर देहात के लिए, हर करिए के लिए, हर शहर के लिए जो भी सरपंच चुना जाता, जो भी सरपंच बनाया जाता, वो बादशाह की तरफ से बनाया जाता था। बादशाह अपॉइंट करता था, बादशाह चुनता था। लेकिन बाद में जैसा जैसा दौर गुजरते गया, आम आदमी को इस बात का इख्तियार मिलने लगा कि वो अपने गांव का सरपंच खुद चुने। इसी को इलेक्शन कहते हैं, इसी को वोटिंग कहते हैं। हर आम आदमी का कर्तव्य है और हर आम आदमी का ये हक है कि वो अपने इलाके का लीडर अपने पसंद का चुने, जिसे वो पसंद करता है और जिससे उसकी उम्मीदें बंधी हुई हैं कि हाँ, ये अगर चुन के आएंगे तो हमारा काम करेंगे, हमारा डेवलपमेंट करेंगे। जो पब्लिक जिसे पसंद करती है उसे चुनकर अपना लीडर बना सकती है। ये आपके नए नए रूल्स हैं, पहले के दौर में ऐसा नहीं हुआ करता था। तो लोकल गवर्नमेंट पब्लिक के हाथ में होती है, उसे अपॉइंट करना, उसे सेलेक्ट करना, उसकी बॉडी क्रिएट करना, ये लोकल पब्लिक के हाथ में होता है। तो ये लोकल गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट सारे इंडिया में नहीं बल्कि सारे वर्ल्ड में एक्सपैंडेड है और इसका इम्पोर्टेंस सारे वर्ल्ड के सारे लीडर्स समझते हैं। ये लोकल गवर्नमेंट के वजह से ही हर एक काम गवर्नमेंट का बहुत आसानी से, बहुत सहूलत से, बहुत सुकून से मुकम्मल होकर हर नागरिक को उसका हक
उसका उसकी राइट उसके हुकूक उसकी ज़रूरत की चीज़ें पहुँच